Yes, very good morning, friends. Today we are going to see problem number 16, okay, which was your homework. Okay, I hope at least you have tried problem number 16. If not tallied, please concentrate. All the items will be covered now. Okay, from the following trial balance, Mr. Piyush and Mr. Arun, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. And balance sheet as on that date. I hope everyone is ready with ruling at least. Okay. हाँ, अब से मैं लिखने नहीं वाला हूँ, तो आपको ही लिखना है, प्रेजेंटेशन आपको ही करना है. Okay. I hope you know that in the books of Messrs. Okay, do not write Mr. Write Messrs. Piyush and Arun. Okay. In the books of, हाँ, ये solution नहीं लिखना है आपको क्रांति सुमंगला का. Okay. फॉर्मेट बोल रहा हूँ मैं. जस्ट अ मिनट में लिख बताता हूँ आपको. It's like this in the books of Messrs dash dash. Below that, trading account, for the year ended 31st March. Date क्या है? 2019. Okay, you have to write 31st March 2019. Okay. Debit credit, particulars rupees, particulars rupees. And I hope everyone knows in trading account we write two opening stock, two purchases, less purchase return, buy sales, less sales return, and after 6 lines or after giving 6 lines blank, by closing stock. हाँ, आज एक स्टार्टिंग में न्यू पॉइंट देखते हैं. मुझे बच्चों बताओ, परचेस रिटर्न के लिए और एक नाम है ना. 11th में हमने कुछ सीखा था. परचेस रिटर्न के लिए और एक वर्ड है, वो बताओ ना मुझे. दिस इज रूलिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ऐसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करोगे? इन दिस मैनर. ओके, आपको इन द बुक्स ऑफ वगैरह कुछ नहीं लिखना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2019. Okay, and then balance sheet. Balance sheet के पहले हम ये देखेंगे. हाँ, परचेस रिटर्न को क्या बोलते हो आप? और एक नाम क्या है? Every one is correct. Very good. Those who have answered, very good. Pro and Shri. I hope you remember that. You have to remember Pro and Shri for this. Pro means purchase return, return outward. Shri means sales return, return inward. Purchase return, return outward. For purchase return, return outward is the another word. And for sales return, return inward is the another word. Okay, you can use purchase return, return outward, sales return, return inward. Pro and Shri. Those who don't know this, please write down. ऊपर मार्जिन में वगैरह लिख लो प्लीज. Pro and Shri. Yes, Pro and Shri. Yes, P&L का रूलिंग हुआ है तो बैलेंस शीट का भी आपको करना है. मेसर्स पीयूष एंड अरुण, balance sheet as on 31st March 2019. Okay. I hope ruling में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, can you please tell me?
हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस या एडजस्टमेंट्स? ट्रायल बैलेंस या एडजस्टमेंट्स? विल स्टार्ट विद एडजस्टमेंट. वेरी गुड. फर्स्ट वन. ओके, दोज आर नॉट ट्राइड, प्लीज राइट विद मी आल्सो. ओके, आपको लिखना भी है मेरे साथ, और जिन्होंने ट्राई किया उनको आंसर देना है. ओके, क्विकली. हाँ, आप शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हो. स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was cost price 40,000 and market price 35,000. मुझे ये बताओ पहले, ये स्टॉक जो है 31st March 2019 का, ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है? हाँ, ये जो स्टॉक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है? 31st March 2019 मींस ये क्लोजिंग डेट है ना. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019 आपको दिया है, इसी डेट के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. दिस इज क्लोजिंग डेट. जिन्होंने भी ओपनिंग बोला है, प्लीज थिंक, दिस इज क्लोजिंग डेट. आपको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं 31st March 2019 को. आप क्लोजिंग डेट को प्रिपेयर करते हो फाइनल अकाउंट्स, नॉट ओपनिंग डेट. ओके, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग डेट पे जो स्टॉक है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे. हाँ, तो कितना लोगे बच्चों, कॉस्ट प्राइस लोगे या मार्केट प्राइस, या दोनों ऐड करके लोगे? यस, प्लीज टेल मी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस 40,000 या 35,000? Stock should be valued at cost price or net realizable value, or cost price or market price, whichever is less. Whichever is less. I hope Gautam you remember that. Whichever is less. जो भी है वो आगे नहीं लगेगा. उनको अब रियलाइज हो रहा होगा कि सब 11th का ही है, और जिन्होंने 11th में स्टडी की है उनको लग रहा होगा कि सर नया बहुत कम है सर फाइनल अकाउंट्स में. यस बच्चों, नया बहुत कम है. बाकी टॉपिक्स नए हैं, आई नो दैट, बट फाइनल अकाउंट्स में अगर 11th में आपने अच्छे से किया है तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स फिक्स जो हो जाते हैं 12th के भी. ओके, हाँ, तो जिन्होंने स्टडी किया उनको बेनिफिट होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको अभी करना होगा. ओके, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, मतलब आपको 35,000 लेना होगा. ओके, बिकॉज 40,000 और 35,000 में विच एवर इज लेस लेना है आपको, जो कम है वो कंसिडर करना है. तो क्लोजिंग स्टॉक 35,000 कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, आपको इफेक्ट देना है, मैं नहीं लिखने वाला हूँ. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसके सामने 35,000. प्रेजेंटेशन आपको ही करना है आपसे. ओके, हाँ, डू नॉट वेट फॉर मी. एंड देन सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट एसेट साइड. हाँ सर, ये हर प्रॉब्लम में होता है क्या आइटम? यस बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक नियर अबाउट एवरी प्रॉब्लम यू विल गेट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट. ओके, क्लोजिंग स्टॉक डेप्रिसिएशन ये कैसा है वो पूछते ही है. ओके, नॉर्मली दे आस्क दिस एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेट्स, आरडीडी, ये उनके फेवरेट एडजस्टमेंट्स. ओके, ये 2-3 एडजस्टमेंट रेगुलरली आते ही है. Yes. Then interest on fixed deposit 1,200 is still receivable. Interest on fixed deposit 1,200 is still receivable. हाँ, पहले ये बताओ बच्चों, आपको फिक्स डिपॉजिट पता है क्या?
एफडी, फिक्स डिपॉजिट। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, आप क्या करते हो, हाँ, आपकी दादी वगैरह घर में रही ना, उनको पूछो आप, वो क्या करते हैं, जो भी पैसा वो जमा करते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, वो जाके बैंक में एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट। ये क्या होता है, आप 12 मंथ्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए वो पैसे बैंक में रखते हो। नॉर्मल सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में नहीं रखते हो आप, ये एफडी का अलग अकाउंट होता है बैंक में, इस पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। ओके, हाँ, तो ये फिक्स डिपॉजिट होगा, तो वो बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसेवेबल, और आना बाकी है। मतलब कुछ आया रहेगा, चेक करो ना, आप नंबर लिख सकते हो क्या? हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, आई होप यू कैन सी दिस। हाँ, यहाँ अमाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, आप, आई होप आपको ऐसे समझा होगा कि टाइपिंग एरर है, एक लाइन या वो एक बॉक्स जो है क्रेडिट बैलेंस में, वो ब्लैंक होने की वजह से वो नीचे गया है अमाउंट। ओके, दैट अमाउंट इज 1,000। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। हाँ, आई होप उतना कॉमन सेंस आपने यूज किया है, अगर नहीं किया था तो आपको अभी तो आई होप पता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट। हाँ, क्रेडिट बैलेंस में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,000 है, दैट मीन्स ये मिला हुआ है इंटरेस्ट। हाँ, तो एडजस्टमेंट में वो क्या बोल रहे हैं कि और ये छोड़ के भी और कुछ आना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे। यस, प्लीज राइट डाउन नंबर 2। नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2। नेक्स्ट, आप लॉजिक पे जाओ, समझ के लिखो। ओके बच्चों, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देन प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्डे डेटर्स। ओके, आप तो अब एक्सपर्ट होने चाहिए आरडीडी में। चलो, डेटर्स को नंबर लिखो 3। कहाँ पे है डेटर्स, नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ, इधर है नंबर 3। हाँ, एक बच्चा मुझे क्वेरी पूछ रहा था, सुनो ना। हाँ, वो क्या बोल रहे थे, सर डायरेक्टली आरडीडी दिया है सर, बैड डेट्स है ही नहीं, फिर क्या करना है सर? फिर लो मत ना कुछ भी, अगर नहीं दिया है तो नहीं होंगे बैड डेट्स, फिर भी आरडीडी हो सकता है ना। आरडीडी क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स कुछ नहीं है, बैड डेट्स मतलब क्या होता है, इरिकवरेबल अमाउंट। हाँ, कोई भाग के नहीं गया है, सब पैसे देने वाले हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा डाउट है, 2.5% डाउट है। ऐसे हो सकता है ना, हर बार बैड डेट्स होने ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, अगर रहे तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना। ओके, यस, आई होप एवरीवन नोज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको डाउट है, सन्डे डेटर्स मींस रिसीवेबल्स होते हैं, उस पे आपको 2.5% डाउट है, इसलिए आप प्रोविजन कर रहे हो पहले ही। ओके, हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जब भी आप फ्रेंड्स को पैसे देते हो, आई होप आप फ्रेंड्स को पैसे देते हो, मतलब अभी तो नहीं, अब कोविड की सिचुएशन में आप बाहर नहीं निकलते हो, बट जब भी आप फ्रेंड से मिलते हो, कभी उसने अगर 20 रुपीज आपसे पूछे या 50 रुपीज आपसे पूछे, तो आप क्या करते हो, फ्रेंड को दे देते हो और भूल जाते हो, बिकॉज आपको पता है एक बार मैंने उसको 20 रुपीज या 50 रुपीज जो भी है, वो अगर मैंने दे दिया तो वो वापिस नहीं आने वाले। तो आप प्रोविजन कर रहे हो पहले ही लॉस के लिए, आपको पता है डाउटफुल डेट है, ये पैसे नहीं आने वाले हैं, आपको डाउट है ये देगा या नहीं। समझ रहा है क्या? वैसे बिजनेस में पता होता है। ओके, यस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट।
Yes. Can we continue now? Okay. Yes, RDT तो I hope आपको समझा होगा. So now there is a basic query. I will take that and then we will move on to next adjustment. Someone is asking, sir, why adjustment has two effects? Because adjustment में आपको जो भी दिया होता है ना, उसकी एंट्री नहीं हुई होती है, तो आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट देने होंगे ना. अगर आप जर्नल एंट्री करते हो तो आप डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इफेक्ट देते हो. तो वो एंट्री के दोनों इफेक्ट देने के बाद, डेबिट एंड क्रेडिट करने के बाद फाइनल अकाउंट्स में क्या इम्पैक्ट होगा, कहाँ दो इफेक्ट होंगे, वो हम देते हैं फाइनल अकाउंट्स में. ओके, दिस इज नथिंग बट डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट. आर यू गेटिंग मी? यस. एक दो एग्जांपल लेके मैं प्रूव भी करूंगा. ओके, जर्नल एंट्री से हम थोड़ा डीप जाएंगे क्या. नॉर्मली मैं 12th के लेक्चर में इतना डीप नहीं जाता हूँ, मतलब डायरेक्टली मैं इफेक्ट्स बोल देता हूँ और समझ भी जाता है बच्चों को. बट अगर आपको एंट्रीज भी चाहिए तो एंट्रीज बता सकता हूँ. जैसे डेप्रिसिएशन अभी ही देख लेते हैं ना. डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%. हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं. हाँ, नंबर तो लिखेंगे 4. ओके, नंबर 4. हाँ, अब डेप्रिशिएशन आपको प्रोवाइड करना है तो आप एंट्री करोगे. क्या एंट्री करोगे बच्चों? डेप्रिशिएशन की एंट्री पता है ना आपको? हाँ सर, हमें पता है. 11 को हुआ है डेप्रिशिएशन टू एसेट, दैट मीन्स फर्नीचर. इज दिस करेक्ट? प्लीज टेल मी. हाँ, अमाउंट बाद में देखो. अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. जिन्होंने वो स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या था, सर दो इफेक्ट क्यों देते हो, दो ही इफेक्ट क्यों देते हो. वो डेबिट और क्रेडिट के रहते हैं. वो मैं प्रूव कर रहा हूँ अभी. हाँ, ये एंट्री समझ गई है क्या आपको? दिस इज फ्रॉम 11th. डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू कम कर रहे हो आप, तो एसेट को क्रेडिट करना होता है. और डेप्रिशिएशन एज ए एक्सपेंस आप डेबिट करते हो. ओके, एक्सपेंस या लॉसेस को डेबिट बैलेंस होता है. यस. तो डेप्रिशिएशन कहाँ ट्रांसफर करते हो बच्चे आप? 11th में याद है क्या? यही डेप्रिसिएशन आप पी एंड एल में ट्रांसफर करते हो. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ ना. पी एंड एल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ, याद है क्या? अब क्या करते हो, सेकंड इफेक्ट, मतलब फर्स्ट बोलो या सेकंड, पी एंड एल में एक इफेक्ट लेते हो ना. पी एंड एल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते हो. सर ये डेबिट का तो आपने दे दिया सर, पी एंड एल के डेबिट में भेज दिया इसको. ये ट्रांसफर होते वक्त क्रेडिट होगा ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट. आई होप एवरीवन रिमेंबर्स. आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू एसेट. 11 की बुक निकाल के देखो, और लेजर में बाय पी एंड एल. याद है क्या बच्चों? ऐसे करते थे आप. 11 की नोटबुक अगर निकालोगे ना, सेम यही दिखेगा आपको. हाँ, थोड़ा डीप जा रहा हूँ, जिसको भी बाउंसर जा रहा है आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको फिर भी फाइनल अकाउंट्स आएगा. हाँ, तो ये डेबिट का तो इफेक्ट दे दिया मैंने. ओके, ट्रांसफर कर दिया पी एंड एल को, पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन. सर ये फर्नीचर का क्या होगा सर? ये फर्नीचर जो है ना, इसका क्या होगा सर? फर्नीचर को आपने क्या किया है बच्चों, क्रेडिट किया है. मुझे बताओ बच्चों, फर्नीचर एसेट है, एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? यस, एसेट या फर्नीचर को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? वेरी गुड, डेबिट बैलेंस होता है. आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बच्चों, क्रेडिट कर रहे हो. इसलिए आप क्या करते हो, बैलेंस शीट एसेट साइड में फर्नीचर से लेस करते हो बच्चों. बिकॉज आप क्रेडिट कर रहे हो एसेट को, इसलिए आप लेस करते हो. लेस डेप्रिसिएशन बिकॉज एसेट की वैल्यू आप कम कर रहे हो. समझ रहा है क्या? हैव यू अंडरस्टूड? दो इफेक्ट. हाँ, थोड़ा जन्नत दिख रही होगी आपको.
दिस इज जन्नत ऑफ अकाउंट्स, आपको समझना चाहिए। ये बहुत डीप गया हूं मैं। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर 12th। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दो इफेक्ट होते हैं, बट ये ऐसे कोई नहीं बताता एंट्री वगैरह करके। ओके, दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड आल्सो, बट मैं थोड़ा डीप जाता हूँ बिकॉज अगर कहीं पे क्वेरी आ रही है तो आपको वो क्वेरी रिजॉल्व होनी चाहिए। ओके, नॉर्मली मैं थोड़ा डीप जाता हूँ तो आपको थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए ना मेरा सीए होने का। हाँ, अगर आपका टीचर, आपके टीचर अगर सीए है, आपके फैकल्टी अगर सीए है, तो आपको थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा देता हूँ कभी कभी। हाँ, बट कुछ बच्चों को बाउंसर जाता है वो। हाँ, बाउंसर गया तो क्या करने का है आपको? छोड़ देने का, टेंशन नहीं लेने का वो। हाँ, सो दिस वाज अबाउट डिप्रिसिएशन। हाँ चलो, बहुत हुआ आप डिप्रिसिएशन। हाँ, डिप्रिसिएशन तो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, आई होप एवरीवन नोज दैट। ओके, डिप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट से आपको लेस करना है। और सेकंड इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। अगर आप हर टाइम एंट्री वगैरह करते बैठोगे ना तो फाइनल अकाउंट में लेट होगा आपको। यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम। ओके, नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 6,000 only। हाँ, ये तो, ये बहुत भारी है। हाँ बच्चों, कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। आपको लगेगा कि सर आप 3 इफेक्ट्स दे रहे हो, बट मैं 2 इफेक्ट दे रहा हूँ। आपको लगेगा कि 3 इफेक्ट है सर। हाँ, मैं अभी बोलूंगा अभी 3 इफेक्ट है बोल के, 3 इफेक्ट्स। बट अभी तो आप बोल रहे थे सर 2 इफेक्ट रहते हैं, 3 इफेक्ट कहाँ से ला रहे हो? सब कुछ समझेगा बच्चों, पहले मीनिंग देखो। गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हाँ, बाद में देखेंगे आगे का, एंड के आगे जो भी लिखा है वो बाद में देखेंगे। पहले देखो, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका इफेक्ट बताओ मुझे, आपको क्या लगता है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, हिंट इज गुड्स जा रहे हैं ना वो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आल्सो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाना है आपको। आपको ये समझा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाना है आपको। यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। हाँ, हम क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मली, हाँ, अभी ये लॉजिकली इधर तो होना चाहिए, मैं देखता हूँ। डेबिट बैलेंसेस में इंश्योरेंस होना चाहिए, हम इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं बच्चे। आपको पता है ना, हर प्रॉब्लम में नॉर्मली अब तक इंश्योरेंस था, इस प्रॉब्लम में ही नहीं है। अब इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिला, आई डोंट नो। ये प्रॉब्लम जिन्होंने भी प्रिपेयर किया है ना, उन्होंने थोड़ा सा ब्लंडर किया है, बट इट्स ओके। आपको ये पता है ना बच्चों, इंश्योरेंस आप पे करते हो, है देखो इधर दिख रहा है क्या, ये अलग प्रॉब्लम का है। ये इंश्योरेंस किसका होता है? दिस इज नथिंग बट फायर इंश्योरेंस। हाँ, बिजनेस के और भी इंश्योरेंस होते हैं, बट आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। नॉर्मली फायर इंश्योरेंस होता है, जब भी आप शॉप ओपन करते हो, आपका शोरूम वगैरह होता है, आप फायर इंश्योरेंस करते हो, आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो उसके लिए। हाँ, आग लगनी तो नहीं चाहिए शॉप में, बट गलती से अगर आग वगैरह लग गई, आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो आपको क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना, वो आपको क्लेम देती है। जैसे यहाँ पे हुआ है, आपको 8,000 आपके गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब आपके जो गुड्स थे उसमें से 8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम कितना दिया है? 6,000 रुपीज। मतलब दिया है, मतलब वो देने वाले हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो भी है, उन्होंने एडमिट किया है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने देने वाले हैं पैसे? 6,000। मीनिंग समझा क्या बच्चों? हाँ, इफेक्ट्स बाद में देखेंगे अब, मीनिंग समझा क्या? आपके गुड्स का लॉस कितना हुआ है? 8,000 आपके गुड्स गए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 8,000 के गुड्स गए। हाँ, अगर आपको
इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं देती, या इंश्योरेंस प्रीमियम ही नहीं भर रहे होते आप, मतलब आपके पास फायर इंश्योरेंस ही नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी का सवाल ही नहीं आता। तो पूरा का पूरा 8,000 आपके लिए लॉस रहता तब। बट इन दिस केस यू हैव पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एडमिट किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। तो इंश्योरेंस कंपनी कितने देने वाली है? 6,000 रुपीज आउट ऑफ दिस 8,000। ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं ना 8,000 की, इसमें से 6,000 आपको क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। तो बाकी 2,000 क्या है बच्चों? गुड्स डिस्ट्रॉय हुए 8,000 के, goods destroyed are of 8,000, and then claim is receivable to the extent of 6,000, and 2,000 is your loss। आपका लॉस है ना बच्चों, इसका कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। गुड्स डिस्ट्रॉयड, दैट्स इट, खत्म। यस, वो आई थिंक राहुल जी का डायलॉग है ना, खत्म, टाटा बाय बाय, वैसे है वो। Goods destroyed by fire 8,000, you will receive claim of 6,000 from insurance company, and remaining 2,000 is your loss। तो अगर आप अच्छे से देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना, तो ये 8,000 जो है ये जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एक इफेक्ट। ओके, दिस इज वन इफेक्ट और फर्स्ट इफेक्ट यू कैन से। और सेकेंड इफेक्ट में 8,000 ही जाने चाहिए थे, बट यहाँ पे डिवाइड हो गए वो 6,000 एंड 2,000 में। तो यहाँ पे हम 6,000 का एक इफेक्ट देंगे और 2,000 का एक इफेक्ट देंगे। समझ रहा है क्या? हाँ, 8,000 के दो ही इफेक्ट है, बट सेकेंड इफेक्ट में ना वो 8,000 6,000 और 2,000 में डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि तीन इफेक्ट बता रहे हैं सर। ओके, यस, लेट्स सी। अब ये क्लेम जो है ना इंश्योरेंस कंपनी से ये मिलने वाला है, तो दिस इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। दिस इज रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। रिसीवेबल मतलब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड में एज इंश्योरेंस क्लेम, you will write it as insurance claim, balance sheet asset side। देन लास्ट वन, ये लॉस हो गया। इंश्योरेंस क्लेम तो मिल रहा है 6,000 का ही, बैलेंस शीट एसेट साइड में 6,000 जाएगा, और ये 2,000 जो लॉस है, लॉस कहाँ जाएगा बच्चों? आप बताओ, आपको पता है लॉस कहाँ जाता है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में, वेरी गुड। हाँ, तो मैं बोलते वक्त क्या बोलूंगा आपको? तीन इफेक्ट है बच्चों, 1 2 3, बट आपको समझ रहा है क्या? दो ही इफेक्ट है। अगर आप देख रहे हो ना 8,000 के दो ही इफेक्ट है, समझ रहा है क्या आपको? 8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, फर्स्ट इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बाद में जो 8,000 का इफेक्ट है ना, हाँ, उसको हमने डिवाइड किया है, 6,000 क्लेम मिलने वाला है और 2,000 लॉस है। ओके, हाँ, बट फाइनल अकाउंट में मैं क्या बोलूंगा? हाँ, ये दीज आर थ्री इफेक्ट्स ओनली, बिकॉज अगर आप दो बोल रहे हो ना, अगर आपने दो इफेक्ट बोल दिए, तो आप क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दोगे और इंश्योरेंस क्लेम लिख दोगे, या पूरा लॉस लिख दोगे, थ्री इफेक्ट्स नहीं दोगे आप। ओके, फाइनल अकाउंट में आपको थ्री इफेक्ट्स ही बोलने हैं। यस, हाँ, इसका नंबर वगैरह कहीं नहीं लिखना है, आपको इफेक्ट देने हैं बच्चों। यस, गो टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आपको लिखना है यहाँ पे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अमाउंट लिखो 8,000। प्लीज डू नॉट राइट रॉन्ग अमाउंट्स। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट, सेकंड इफेक्ट इंश्योरेंस क्लेम,
बैलेंस शीट एसेट साइड में जाओ, बैलेंस शीट एसेट साइड, सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट डाउन इंश्योरेंस क्लेम। आई होप आपको स्पेलिंग पता है, पता नहीं है तो देखो वहां पे इंश्योरेंस की स्पेलिंग है क्वेश्चन में। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलने वाला है आपको? 6000। आपको पता नहीं है बट आपके पेरेंट्स ने आपका भी इंश्योरेंस निकाला हुआ है, वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। अभी अगर कोविड में पापा मम्मी वगैरह घर में ही है पेरेंट्स, तो आप पूछो ऐसे ही। हाँ, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है आपको कि लाइफ इंश्योरेंस है या है क्या नहीं, ऐसा पूछो, आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सर बोल रहे थे कि LIC ऐसे कुछ तो होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ना लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो मेरा है या नहीं, ऐसे पूछो आप, मेरा मतलब आपका। ओके। हाँ, जैसे अब फायर का इंश्योरेंस होता है ना, वैसे लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है। सर फिर ये अकाउंट में नहीं आता है क्या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? आता है बच्चों, बट इफेक्ट वगैरह मैं बताता हूँ आपको, जब आता है तब बताऊंगा। यस, इंश्योरेंस क्लेम 6000 लिखा है आपने। यस, अब P&L अकाउंट जाओ, P&L अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, फर्स्ट लाइन आप नॉर्मली ब्लैंक छोड़ते हो, वैसे ही छोड़ना है आपको। और सुनो ना, सुनो ना, लॉस फर्स्ट लाइन में ही मत लिखो, मतलब एक लाइन ब्लैंक छोड़ के बिना, सपोज दिस इज योर P&L अकाउंट, एक लाइन छोड़ के अगर इधर ही आप लिख रहे हो लॉस, तो अच्छा नहीं लगता है बच्चों, समझ रहा है क्या? इधर ही मत लिखो, कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ो बाकी आइटम्स के लिए, फिर इधर लिखो आफ्टर फ्यू लाइंस टू लॉस बाय फायर। ये प्रेजेंटेशन पार्ट है, हाँ बच्चों। समझ रहे हैं क्या? P&L में फर्स्ट आइटम ही टू लॉस बाय फायर अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, जिन्होंने भी मेरे पास 11th किया उनको पता है थोड़ा सा, आपको प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा 12th में। हाँ, इट डजेंट मैटर मार्क्स वगैरह कुछ कम नहीं होते, बट आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा प्रेजेंटेशन नॉर्मली कैसे होता है। ओके, लॉस वगैरह एट द एंड होते हैं। ओके, टू लॉस बाय फायर 2000। यस, हैव यू रिटन दिस? तो हैव यू अंडरस्टूड थ्री इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 5? डायरेक्टली इफेक्ट दिए हैं हमने, बिकॉज कहीं पे भी नंबर नहीं लिख सकते। Yes, I hope everyone has understood problem adjustment number 5, one of the important adjust as an adjustment in this question, and this can directly come in your exam. Okay, this can directly come in your exam. Okay, so हमको ट्रायल बैलेंस देखना है, but the problem is Ritika, please turn off your camera. Yes, this time constraint. Okay, we will continue problem number 16 in the next lecture. Okay.